એકમાત્ર આશાની ઉમ્મીદ એવા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય અરવિંદ કેજરીવાલજીનું હું રાજકોટની અને સૌરાષ્ટ્રની ખમીરવંતી જનતા વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે એમને તાળીઓથી વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સર. સાથે સાથે મંચ ઉપર યુવાનોના આઈડલ અને આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ, ટ્રેડ વિંગના પ્રમુખ શિવલાલભાઈ બારસિયાનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે હું શિવલાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે અરવિંદજીનું ટ્રેડર્સ એસોસિએશન ટ્રેડર્સ વિંગ વતી રાજકોટના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગ સાહસિકોનું સ્વાગત મોમેન્ટો દઈને આજે રાજકોટમાં જે ટ્રેડર્સ એસોસિએશન સાથેની ટ્રેડર્સ અને વેપારીઓ સાથેની આજની આ મીટિંગમાં દેશની એકમાત્ર ઉમ્મીદ શિવલાલભાઈ આપણા સૌ વતી અરવિંદજીનું સ્વાગત અને મોમેન્ટ આપીને સ્વાગત કરે છે. આભાર. હું હવે એક એવા વ્યક્તિને અહીંયા ડાયસ ઉપર આમંત્રિત કરું છું કે જેઓ આજ સુધી ગુજરાતની જનતાના, ગુજરાતના ખેડૂતોના, યુવાનોના અવાજને આ બહેરી મૂંગી સરકારના કાન સુધી પહોંચાડવાનું નિડરતાથી જેમણે કામ કરેલું પત્રકારત્વના માધ્યમથી, એવા શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવીને હું અહીંયા આમંત્રિત કરું છું. એ આપણા વચ્ચે એમની પોતાની વાત રાખશે. શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવી. બોલો ભારત માતા કી. મંચસ્થ ઉપસ્થિત પત્રકારોને સપોર્ટ આપો, એ જ આપણી વાત આખા ગુજરાત સુધી પહોંચાડશે. રિક્વેસ્ટ છે મારી બધાને, વિનંતી છે, પત્રકારોને સપોર્ટ આપો. મંચસ્થ ઉપસ્થિત માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, ગોપાલભાઈ, ગુલાબજી, ઇન્દ્રનીલભાઈ, અજીતભાઈ અને શિવલાલભાઈ અને તમામ વેપારીઓ કે જેઓ અરવિંદ કેજરીવાલજીની નીતિઓ સાથે અથવા તો એમની મુશ્કેલીઓ આજે જે અરવિંદજી સમક્ષ મૂકવાના છે, એ તમામને હું અહીંયા સાદર પ્રણામ કરું છું, આવકાર કરું છું. મિત્રો, અરવિંદજી જ્યારે એમણે નક્કી કર્યું ગુજરાતની દરેક સમસ્યાઓ સમજવાનું, છેલ્લા 1 મહિનાથી દિલ્હીની વિવિધ ટીમો દ્વારા દરેક ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અરવિંદજી અમને સૂચના આપી थी कि पूरे गुजरात में किसान हो, व्यापारी हो, छोटे कर्मचारी हो, इन सब की समस्याएं सुननी है. એટલે આજે જે આપણે પ્લાન કર્યું છે વેપારીઓ સાથે જનસંવાદ, તમામ વેપારીઓને મારી વિનંતી છે કે તમારા દિલમાં જે પણ મુદ્દા હોય, તમને લાગતા હોય શક્ય બનશે નહીં બને એ તો સમય કહેશું, પણ અરવિંદજી સાથે ખુલ્લા મને તમે ચર્ચા કરજો. કોઈને પણ કોઈ પણ મુદ્દો હોય, અરવિંદજી સમક્ષ ગુજરાતના મુદ્દાઓને લઈને આપણે ચર્ચા કરવાની છે. મારી આપને વિનંતી છે કે સહેજ પણ મૂંઝાયા વગર, હિચકિચાટ વગર, અરવિંદજી એવું કહ્યું છે કે सबको उनकी समस्या सुननी चाहिए અને આપણી સમસ્યા સાંભળીને પછી અરવિંદજી છેલ્લે પોતાના મંતવ્ય મૂકશે, વિચાર મૂકશે. તો મારી આપ સૌને વિનંતી છે, કારણ કે અરવિંદજી આપણા માટે દિલ્હીથી સ્પેશિयल આવ્યા છે. हमें रिक्वेस्ट करी तो कि रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. गुजरात की व्यापारी जो है, गुजरात के व्यापारी है, वो भी हमें रहे और उनकी पीड़ा वो हमारी पीड़ा है. એટલા માટે ખેડૂતો માટે પણ આગામી સમયમાં અરવિંદજી સાંભળવાના છે.
આદિવાસી સમાજને સાંભળવાના છે, આજે વેપારી સમાજને, અને એટલા માટે આજે આ કાર્યક્રમ છે. વધારે મારે એટલા માટે કહેવાનું નથી થતું કે અરવિંદજીને જ આપણે સાંભળવાના છે ને તમારી રજૂઆતો લેવાની છે. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર ઈશુદાનભાઈ. અત્યારે આપણી વચ્ચે એક એવા વ્યક્તિ ઉપસ્થિત છે કે કદાચ આઝાદી પહેલા જે આપણા ક્રાંતિકારીઓ ભગતસિંહ, સુખદેવ, અશફાક ઉલ્લાહ એ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી દેશને આઝાદ કરવા માટે જે રીતે લડતા હતા, આજના સાંપ્રત સમયમાં હું એવું માનું છું કે આ તાનાશાહ સરકાર સામે જે ક્રાંતિકારી યુવાન લડી રહ્યો છે, એવા જ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને હું વિનંતી કરીશ કે પોતાના 2 શબ્દો રાખશે. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા. આજના આ જનસંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીનું હું ગુજરાતની અને સૌરાષ્ટ્રની પવિત્ર ધરતી પર સ્વાગત કરું છું. વિશેષમાં આજના આ સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાતની ધરોહર અને દેશના અર્થતંત્રના પાયામાં રહેલા જે વેપારીઓ છે, એ તમામ વેપારી સાથી મિત્રોનું હું આમ આદમી પાર્ટી વતી સ્વાગત કરું છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આપ સૌએ અહીંયા હાજરી આપી છે. આ સાથે વિશેષમાં જણાવવાનું કે આજે વેપારીઓ સાથે સંવાદનો જે કાર્યક્રમ છે, એ હકીકતમાં તો હાલની સત્તાધારી પાર્ટીએ કરવાની જરૂર હતી. સરકાર એમની છે, પ્રશ્ન હોય તો એનું નિરાકરણ એમનાથી હાલમાં આવવાનું છે. પરંતુ વર્ષો સુધી વેપારીઓએ, નાગરિકોએ, લોકોએ બધા એટલો બધો સપોર્ટ કર્યો છે ભાજપને કે હવે એમને આપણી વાત સાંભળવાની જરૂર પણ નથી અને સમય પણ નથી. ત્યારે પોતાના કિંમતી સમયમાંથી સમય કાઢીને અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વાત સાંભળવા માટે આવ્યા છે. આ ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે. દેશના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને ચર્ચિત મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને ગુજરાતના વેપારીઓ પ્રત્યે કેટલી લાગણી છે, એમનું અને ગુજરાતનું કંઈક સારું થાય તે માટે કેટલા પ્રયત્નશીલ છે, એનું ઉદાહરણ છે કે આજે તેઓ અહીંયા આપણી વચ્ચે આવી અને આપણી વાત સાંભળવાના છે. અને એક બીજી હકીકત એ છે કે કેટલાય બધા નેતાઓ, કેટલી બધી પાર્ટીઓ દેશમાં છે, ચૂંટણીઓ આવે છે, ચૂંટણીઓ ખાલી આમ આદમી પાર્ટીએ જ લડવી છે અને આમ આદમી પાર્ટીએ જ ચૂંટણી જીતવી છે એવું તો નથી જ. ભાજપને 182 સીટો જીતવી છે, છતાંય એમને એટલું મહત્વપૂર્ણ નથી લાગતું કે લોકો સાથે સંવાદ કરું. દેશના ઇતિહાસમાં લોકોના હાથમાં માઇક આપીને સ્ટેજ અને માઇક અને સામે બેઠેલા લોકો વચ્ચે સંવાદ થાય એવું કલ્ચર લાવનાર પહેલા વ્યક્તિ છે અરવિંદ કેજરીવાલજી અને આમ આદમી પાર્ટી. નહીતર આજ દિવસ સુધી તો એ પ્રથા હતી કે ભાઈ માઇકમાંથી બોલે, આપણે સાંભળવાનું, કાર્યક્રમ પૂરો થાય તો ઘરે જતું રહેવાનું. અરવિંદજીએ એ પ્રથા આપી કે લોકોને બોલવાનો અધિકાર છે, લોકો બોલશે, આપણે સાંભળીશું. તો આવા સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી આપણી વાત સાંભળવા માટે પધારેલા, ગુજરાતનું સારું કંઈક થાય અને ગુજરાતની અંદર નવું બદલાવ આવે એ માટે પ્રયત્નશીલ અરવિંદજીનો આભાર માનું છું. અને છેલ્લી વાત કે જનતા વેપાર કરે, નાગરિકો વેપાર કરે તો દેશની પ્રગતિ થાય, દેશ આગળ વધે, સમાજ આગળ વધે, ઇકોનોમી આગળ વધે. પણ સરકાર વેપારી થઈ જાય ને સરકારી સંસ્થાઓ વેચવાનું ચાલુ કરે તો દેશની અધોગતિ થાય. એટલે આજે હાલત એ થઈ છે કે વેપારી કંગાળ થઈ ગયા છે અને સરકારે વેચવાનું ચાલુ કર્યું છે. વેપારનો અધિકાર જનતાને છે, સરકારને નથી. ત્યારે જનતાના અધિકારોનું રક્ષણ થાય, વેપારીઓના અધિકારોનું રક્ષણ થાય, એના માટે પ્રયત્નશીલ આમ આદમી પાર્ટીને આપ તમામનો સપોર્ટ મળશે, આવનારી ચૂંટણીની અંદર સહયોગ મળશે એવી આશા સાથે આપ તમામનો આભાર. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈ. ગોપાલભાઈ ખૂબ સરસ વાત કરી કે આજની આ સરકારે આપણા પ્રશ્નો સાંભળવા માટે આ રીતનું આયોજન કરવું જોઈએ, પણ એ નથી કરતી, કોઈ સાંભળવા વાળું નથી. પણ આમ આદમી પાર્ટી હવે આવી गई है. सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो जन्मदिन हो, त्योहार हो, तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप सुखी समृद्ध हो. तो मैं मानता हूं कि इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी के लिए ही ब्लेसिंग है, क्योंकि जहां जहां जिस राज्य में भी आम आदमी पार्टी आई है वहां पे लोग सुखी और समृद्ध हुए हैं. तो आज जो भी ब्लेसिंग लोग देते हैं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपके राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आए. मुझे ऐसा लगता है. इसके साथ ही અત્યારે અહીંયા જે પણ મહાનુભાવો આમંત્રિત વેપારીઓ, ટ્રેડર્સ, ઉદ્યોગ સાહસિકો છે એમને
અરવિંદજીની સામે આપણે આપણા પ્રશ્નો મૂકવાના છે ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના આપણા વ્યાપાર ધંધામાં જે આપણને, તો હું આમ આદમી પાર્ટીની જે ટીમ છે વોલન્ટિયર ટીમને વિનંતી કરીશ કે જેમને પણ પોતાનો પ્રશ્ન અહીંયા તમે લોકોને મૂકવો હોય હેન્ડ રાઇઝ કરો, તમારા સુધી માઇક પહોંચાડશે અને આપનો પ્રશ્ન આપણે અરવિંદજીને પહોંચાડીએ. ગુજરાતના વ્યાપાર ધંધાને લગતા પ્રશ્નો આપણે ગુજરાતના પધારેલા અને આપણા સૌની દેશની એકમાત્ર ઉમ્મીદ એવા અરવિંદ કેજરીવાલ સુધી પહોંચાડી અને એનું સોલ્યુશન આપણને એ આપશે. તો તમારા જે કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય, જેને લાગતું હોય કે મારે આ પ્રશ્ન પૂછો, પોતાનો હેન્ડ રાઇઝ કરશે, હાથ ઊંચો કરે એટલે હું ત્યાં માઇક પહોંચાડવાના અમારી ટીમને કહું. જી, ત્યાં બ્લુ શર્ટની બાજુમાં વ્હાઈટ શર્ટ. નમસ્કાર સરજી. ગુજરાતીમાં બોલો કે હિન્દીમાં સાહેબ? હિન્દીમાં શક્ય હોય તો બોલો, નહીતર ચાલશે. હિન્દી પાછું મને બહુ ફાવશે ને, વિજયભાઈ જેવું ફાવે. હવે સાહેબ, વેપારીઓનો મોટાભાગનો પ્રશ્ન એક છે કે તમારે ત્યાં દિલ્હીમાં પ્રોફેશનલ ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે કે નહીં? આપનો પરિચય પણ આપી દો સાથે સાથે. રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ડિરેક્ટર રાજુ જુન. હા, તમારો પ્રશ્ન લઈ લીધો છે. એક સાથે પ્રશ્ન લઈ અને પછી એક સાથે એનો જવાબ લઈ લીધો, લઈખો, હમણાં એનો જવાબ આપશે. એમને હા, ઓકે. આપે રાજુભાઈ. જે પણ મિત્ર હોય એમનો પરિચય આપી અને પ્રશ્ન રાખે. હવે કોને પૂછવો છે હેન્ડ રાઇઝ કરશે જરા, જેમને પણ પૂછવો હોય. પીછે ભાઈ, ત્યાં બ્લુ શર્ટ કે પીછે પહોંચાઓ, આપ માઇક પહોંચાઓ, માઇક પહોંચાઓ. માઇક પહોંચે છે બધા સુધી. આપનો परिचय आप व्यापार पूछो. अरविंद जी नमस्कार सर, मेरा नाम जिग्नेश मुगरा है, मैं जामनगर से आया हूँ. ब्रास कंपोनेंट्स का काम है मेरा. और मेरा क्वेश्चन एक है, पहले तो कि जीएसटी आ गया, इसके बावजूद भी वेट के जो रिफंड है और वो भी 1 लाख रुपया और उनसे छोटी या बड़ी अमाउंट के अभी तक सरकार नहीं दे रही है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जीएसटी असेसमेंट होता है उसमें 2.5% जब तक उसको ना दे उसके ऑफिसर को, तब तक हमारा काम नहीं होता है. कोई माने या ना माने, ये गुजरात में आज की सच्चाई है. तीसरी चीज ये कि जब हम ई-वे बिल अपलोड करते हैं और टेस्ट के साथ उसका जो भी अमाउंट होता है, अपलोड होने के बाद जब हम प्रिंट निकालते हैं तो वो अमाउंट बदल जाता है. इसके रिगार्डिंग हमने जो सरकार के अधिकारी है उनसे भी संपर्क किया है, लेकिन वो बोलते हैं साइड का प्रॉब्लम है, और कम से कम ये 6 महीने से उसका साइड का प्रॉब्लम चल रहा है. तीसरी चीज ये है सर, 1 मिनट, इसका मतलब ये फिर जाओ ठीक कराने के पैसे लेते हैं, राइट? ये है कि जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कुछ सुविधा तो नहीं दे रही है, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रही है. क्योंकि वो जो रेंट पे होते हैं, ठीक है, उनका एक सर्कुलर है कि जो आप रेंट पे देते हो तो उसके जो ओनर होते हैं, जीआईडीसी के तो ओनर होते नहीं है, जीआईडीसी मालिक है, लेकिन जिसके नाम की प्रॉपर्टी है उन्होंने अलॉट की है उसको लिख के देना पड़ता है. तो अभी जो भूमाफिया है उनके जरिए ये प्रॉपर्टी जो आज से 35-40 साल पहले तो इतनी कीमत नहीं थी, तो वो खाली करवाती है, और गुजरात के बड़े बड़े मिनिस्टर इसमें साथ है. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. તમારા પ્રશ્નો લઈ લો. અને અજીતભાઈ, એક લાસ્ટ પ્રશ્ન છે ને, એને જાણવું જરૂરી છે અને ઇલેક્શન રિલેટેડ છે. બોલી જાઓ ઝડપથી. જી सर, एक हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, वो आज नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रश्न रखा है कि वो गुजरात के सारे महानगरों में जो टीपी स्कीम होती है उसमें 40% जगह कॉरपोरेशन को दे देनी पड़ती है. वो बिल्डर और डेवलपर्स नहीं बेच सकते, कॉरपोरेशन उसको बेच देती है. मतलब वो भ्रष्टाचार करने का तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है. और अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार बने और आप इस पे कुछ एक्शन ले, तो इससे क्या होता कि 50-60 फुट के रास्ते कर दो, तो हम उसमें ट्री लगा सकते हैं,
सबकी पार्किंग कर सकते हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो उसमें डिस्टेंस भी सारा कुछ मेंटेनेंस हो सकता है। ओके। और सर एक चीज, धन्यवाद। आपकी ये सादगी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वरना आजकल लोग है ना सर 4-4 करोड़ के सूट पहन के अपने को फकीर कहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। આ સાઈડથી હવે જેને પણ પ્રશ્ન હોય હા હેન્ડ રાઈઝ કરો આ સાઈડથી અહીંયા આગળ પિંક શર્ટ વાળા ભાઈ આગળ આપો, અહીંયા માઈક આપો, પિંક શર્ટ અહીંયા આગળ માઈક આપો। नमस्ते सर, मैं राजकोट की इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता हूं। राजकोट एमएसएमई के लिए हब है, अबाउट 40,000 इंडस्ट्रीज है। तो एमएसएमई के ग्रोथ के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दोनों रखा है। आप एमएसएमई ग्रोथ के लिए क्या सोचते हैं, इसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? आज हम आपको सुनने आए हैं। एमएसएमई में सबसे पहले जीएसटी, किसी भी चीज का जीएसटी अचानक से बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल पंप इंडस्ट्री राजकोट में बहुत ज्यादा स्प्रेड है, तो ऑल काइंड ऑफ पंप्स में उन्होंने 12% से 18% जीएसटी रेट कर दिया विदाउट एनी लॉजिक। तो जीएसटी काउंसिल इतने सालों से काम कर रही है, तो हर चीज का रेट उन्होंने पहले से डिसाइडेड था। तो अभी अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि जीएसटी किसी चीज में नहीं था उसे लगा दिया, किसी में था उसको बढ़ा दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले व्हीकल यानी कार, स्कूटर, वो सब बाइक लग्जरी मानी जाती थी, तो लग्जरी आइटम के ऊपर 28% जीएसटी रखा जाना चाहिए, ऐसा सोच था गवर्नमेंट का। इस हिसाब से कई ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में, व्हीकल में 28% जीएसटी रखा है, मगर वो आजकल नेसेसिटी है, वो लग्जरी नहीं रही। तो हर किसी को चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। तो जीएसटी उसमें कम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो गवर्नमेंट जीएसटी के बारे में बहुत इनजस्टिस कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। एमएसएमई ग्रोथ के लिए ये सुविधा, जैसे पहले एक्सपोर्ट में इंसेंटिव मिलता था, वो भी अभी कट कर दिया है। तो एमएसएमई ग्रोथ के लिए ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल गुड सब्सिडी, और एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दोबारा एप्लीकेबल करना चाहिए। ये मेरा विचार है। थैंक यू। આભાર, ધન્યવાદ। અહીંયા આ સાઈડથી, રાઈટ સાઈડથી એક જ મિનિટ। नमस्कार सर, मेरा नाम कमलेश सांगानी है। मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में काम करता हूं। सर, सोलार पावर प्लांट की दुनिया में काफ़ी डिमांड है और हिंदुस्तान को भी काफ़ी ज़रूरत है। पहले उसमें सोलार पैनल और सोलार इन्वर्टर में 5% जीएसटी था, जो अभी 12% बढ़ा के कर दिया, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाया है। दूसरी बात, गुजरात गवर्नमेंट ने 2019 में SSDSP करके एक योजना बनाई थी, स्मॉल स्केल सोलार डिस्ट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट्स। ये योजना के अंतर्गत गुजरात के मोर देन 4000 लोगों ने सोलार पावर प्लांट डालने के लिए एप्लीकेशन किया था, और वो सोलार पावर प्लांट डाल के पावर सरकार को बेचने का था, उस टाइप का एग्रीमेंट था। वॉट एवर द सोलार पावर प्लांट, जो हम ग्राउंड में सोलार पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कम्स अंडर एमएसएमई, वो उद्योग में आता है, एमएसएमई में आता है। और एमएसएमई के हिसाब से उसको इंटरेस्ट और कैपिटल सब्सिडी मिलनी चाहिए। 4000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के भरोसा करके ये योजना में अपने काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बाद में सरकार मुकर गई कि इसमें कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। काफी लोगों का लैंड इसमें फंसा हुआ है, काफी लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, और सरकार बोल रही है कि आपको ये अगर मंजूर नहीं है तो आप एग्जिट ऑप्शन ले लो। अभी जिसका पैसा फंस गया है वो क्या करेंगे सर? अगर योजना रखने से पहले ही सरकार ने बताया होता कि इसमें सब्सिडी अलाउड नहीं है तो कोई अप्लाई ही नहीं करता। बात सिंपल है। थैंक यू। અહીંયાથી हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम धनसु गोरा है। मैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज चलाने का कर रहा हूँ। आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। सर, जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टी, अलग अलग पार्टी लोगों को प्रॉमिस दिया था कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी मर्ज इन जीएसटी। अभी गुजरात में प्रोफेशनल टैक्स सेपरेट लिया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी बहुत भारी लिया जाती है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज, एमएसएमई इंडस्ट्रीज इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। गुजरात की इकोनॉमी एमएसएमई इंडस्ट्रीज के आधारित है। उसमें
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का इतना बड़ा बोझ आ रहा है। आपने उधर दिल्ली में रेसिडेंट्स को तो 300 यूनिट फ्री दे दिया है, मगर आप कुछ सोच सकते हैं कि गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में इंडस्ट्रीज को मिल सके? थैंक यू वेरी मच। થેન્ક યુ વેરી મચ. લેવા છે પાછળથી આપો પાછળ. અત્યારે કઈ રીત અત્યારે કેટલું મળે છે રેટ? તમે ઇલેક્ટ્રોનિક ડ્યુટીનું કીધું, કેટલા ટકા ઇલેક્ટ્રોનિક ડ્યુટી કેટલી લાગે છે? हेलो हेलो પાછળથી હા. हेलो हेलो सर પરિચય આપો તમારો અને પ્રશ્ન બોલો. હું myself धर्मेश मेहता, आई एम कनेक्टेड विथ माइनिंग बिजनेस और मेरे 3 स्टेट्स में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। मेरा ये मानना है कि अपने आम आदमी पार्टी मतलब हम आम लोगों को देखते हैं और आम लोगों को कैसे हम बिजली या एजुकेशन में मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि पेट्रोल और डीजल में जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो तय की हुई है, वो हर एक स्टेट के पास अपनी सत्ता है कि वो अपनी जीएसटी तय करे। आज राजस्थान में पेट्रोल और डीजल में जीएसटी अलग है, गुजरात में अलग है, दिल्ली में अलग है, पंजाब में अलग है। हम जिस स्टेट में प्ले कर रहे हैं वहां पे हम अपनी जीएसटी पेट्रोल डीजल में इतनी कर ले कि दूसरे अदर स्टेट की कंपैरिजन में हमारे पेट्रोल और डीजल के रेट्स इतने कम हो ताकि सारी चीजें पेट्रोल और डीजल से कनेक्टेड है और सारी चीजें सस्ती हो। तो ये मेरा सजेशन है कि हम इस बेस में कुछ आगे करें। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. લેને આ સાઈડ થી કોઈ ભાઈ, આ સાઈડ થી પણ હા, वहां पे माइक दो भाई. हाँ हेलो, मेरा नाम आनंद लोटिया है। हाँ संभળાય છે, बोलो. मेरा नाम आनंद लोटिया है। मैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में ही कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट, मतलब मेरा एक छोटा सा यूनिट भी है जॉब वर्क का। तो मेरी एक ये विनती है कि मैं जिस चैनल में काम करता हूँ वहाँ पे मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अवेयरनेस जिनको नहीं है, अपनी जो टैक्सेशन में बजट के बीच में भी, मतलब एक बजट में जो तय हुआ है अगले बजट में जो आने वाला होता है उसके बीच में, जैसे पहले एक अंकल ने बोल दिया कि जो 12% जीएसटी था उसमें मतलब कभी भी उसको जब भी मर्जी पड़े फ्लक्चुएशन आ जाता है, 12 वाला 18 हो जाता है, 5 वाला 12 हो जाता है। तो एक तो वो सिस्टम ई वे बिल का सिस्टम भी उसको मतलब जो चैनल में है उसको अवेयरनेस नहीं है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी लगाने के लिए रेडी होते हैं ये लोग। तो वो डिले ना हो ऐसा जीएसटी ऑफिस में कोई ऐसा कोई विंडो हो पब्लिक रिलेशन के लिए कि भाई छोटा व्यापारी जो है वो सीधा अपना मटेरियल जो भी अपना टर्नओवर वगैरह का जो डिटेल है वो वहाँ जाके सबमिट करके वो मंथली रिटर्न भर दे। एक ये भी है कि छोटा व्यापारी की अपनी आमदनी कम है फिर भी उसको एक बड़ी अमाउंट कंसल्टेंट और अकाउंटेंट को पे करनी पड़ती है, क्योंकि आज की सिस्टम में जो मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो वो मजबूर है कंसल्टेंट के पास जाने के लिए। तो उसको फ्री कंसल्टिंग ऐसे जीएसटी भवन में ही मिल जाए बिना कोई खर्च किए। थैंक यू. હવે આ સાઈડ ભાઈ. હા મારું નામ જેએમ જાડેજા છે. થોડું માઈક ઊંચું રાખજો તમારે. હલો, મારું નામ જેએમ જાડેજા છે. હું એલઆઈસીનું કામ કરું છું અને સામાન્ય માણસ સુધી ફરું છું. એના આધારે હું મારો પ્રશ્ન એ પૂછવા માંગુ છું કે ઘણા ટાઈમ પહેલા એક એવો પરિપત્ર આવ્યો હતો કે તમારે બોર હોય તમારા ઘરની અંદર તો તમારે 10,000 રૂપિયા ભરવા પડશે. તો આવા નવા નવા પરિપત્ર બહાર પાડીને સામાન્ય માણસને ક્યાં સુધી દબાવવામાં આવશે? એટલે ખરેખર આ વસ્તુના ફેરફાર કરવા જોઈએ. સામાન્ય માણસ જે અત્યારે ખર્ચ કરે છે, ઘણા પાસે ગેસના બાટલા ભરાવાના પૈસા નથી, તો આ બધી વસ્તુ ઉપર ધ્યાન દઈને એમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ.
થેન્ક યુ. અતુલભાઈ, અતુલભાઈને આપો. અહીંયા માઇક આપજો અતુલભાઈ. ભાઈ અહીંયા માઇક આપો ઝડપથી ફટાફટ. यहाँ पे આપનો પરિચય આપીને. નમસ્કાર, હું અતુલ, રાજકોટ માર્કેટ ડિરેક્ટર છું અને સૌરાષ્ટ્ર એપીએમસી વેપારી એસોસિએશનનો પ્રમુખ પણ છું. વેપારીઓને નજીકના પ્રશ્નોથી હું વાકેફ છું. પહેલા તો કેજરીવાલ સાહેબને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે ગુજરાત અને રાજકોટના વેપારીઓના પ્રશ્નો સાંભળવા માટે તમે દિલ્હીથી રાજકોટ સુધી પધાર્યા. અતુલભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શક્ય હોય તો હિન્દીમાં તો સીધો. हाँ सर जी, जो आप दिल्ली से इधर तक पहुंचे, हम व्यापारी लोग आपका काफी इंतजार किया, लेकिन यहाँ से कोई व्यापारी बाहर नहीं गया क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहे थे. और मेरा जो प्रश्न है, जब प्रधानमंत्री को रात में सपना आता है तब नोट जीएसटी लगाते और इसके बाद 3 कानून लाए, 1 साल के बाद कानून वापस लिए, लेकिन एपीएमसी एक्ट है वो गुजरात में अभी बरकरार है. एपीएमसी एक्ट से गुजरात के मंडी को काफी नुकसान हो रहा है. काफी मंडियां बंद हो रही है, कर्मचारियों को पगार देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है. तो ये गुजरात की जो बात करें तो बाकी दूसरे राज्यों में एपीएमसी एक्ट निकाल दिया गया है, तो गुजरात में क्यों? तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताइए. थैंक यू. लेना है सर. हेलो सर. नमस्कार सर, आप भावेश मोरबी. यहाँ पे गुजरात में आए हमारा क्वेश्चन सुनने के लिए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्र दिया. मैं स्पेशली सिरामिक इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मोरबी से आया हूँ. पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो जीएसपीसी गैस है कि जो एक तरफा शासन चला रहा है कि मोरबी में और कोई कंपनी गैस सप्लाई नहीं कर रही है अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम सिर्फ जीएसपीसी पे डिपेंड कर रहे हैं. वो जब चाहे तब अपनी मनमानी करती है. चाहे रात को 12 बजे उसको लगा कि चलो आज रेट बढ़ाना है तो रात को 15 पैसा, 20 रुपया, 25 रुपया, कुछ भी रेट बढ़ा दिया है. तो उसके लिए एक सॉल्यूशन चाहिए कि कोई और कंपनी भी आ सके, जिसके वजह से क्या है कि कंपटीशन हो गई तो हमें फायदा होगा, तो हम हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छी तरह से रख सकेंगे. दूसरी बात ये है कि जब पीएमओ सर ने कहा था कि आपको हर लेबर के लिए पानी मिलेगा, हर फैक्ट्री में अच्छा पानी मिलेगा, पीने लायक पानी मिलेगा, तो पानी की बात तो दूर रही, आज तक लाइन भी नहीं मिला है पानी का. तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि ये सिरामिक इंडस्ट्री है, आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं. तो जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि अच्छे रोड रास्ते होने चाहिए, बिजली का फैसिलिटी होना चाहिए, कि पब्लिक को बाहर जाना है तो कोई अच्छी जगह होनी चाहिए. जबकि आप मोरबी में आओगे तो आपको मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. आपको ऐसे ही लगेगा हम ये कहां पे आ गए, रेगिस्तान में आ गए हैं क्या? तो जो हम टैक्स भरते हैं तो उसका हमें रिवर्ट तो मिलना चाहिए ना. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? थैंक यू બધા આભાર. આ તમામ પ્રશ્નો જેટલા પણ અત્યાર સુધી પૂછાણા, જેટલા પણ તમે ફીડબેકમાં લખીને દીધા છે, હું એવું માનું છું કે દેશની એકમાત્ર આશા ઉમ્મીદ, જે હમણાં પણ હું શબ્દ બોલ્યો હતો, એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી પાસે આની માસ્ટર કી છે. આઈઆઈટી કરેલા છે અને એની ડિગ્રી પણ ઓરિજિનલ છે. એટલે આપણે એમની પાસેથી હવે સાંભળીએ. હું વિનંતી કરીશ કે અરવિંદજી આ તમામ પ્રશ્નોને લઈને આપણને માર્ગદર્શન કરે. અરવિંદ. सभी व्यापारियों और मेरे प्यारे उद्योगपति साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम. मुझे बताया गया था कि गुजरात में इतना डरा के रखा हुआ है व्यापारियों को, इतना डरा के रखा हुआ उद्योगपतियों को कि अगर आप कोई टाउन हॉल करेंगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आने की. एक बार ये लगभग साल भर पहले मेरे को सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया. सब कुछ फाइनल था, उन्होंने हॉल भी बुक कर लिया, सब कुछ हो गया. लेकिन जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि हमारे हॉल की बुकिंग भी कैंसिल करवा दी, हमें धमकी दी जा रही है.
लेकिन आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे साथियों के मैंने प्रश्न सुने। आज मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके हाथ खड़े हुए थे। मेरी आप लोगों से विनती है, जिन जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला और वो बोलना चाहते थे, आप अगर मुझे लिख के भी देंगे, हमारे पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, अगर लिख के देंगे मैं एक एक पढ़ूंगा। चाहे आप गुजराती में लिख के दें, मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा, लेकिन एक एक मैं पर्सनली पढ़ूंगा और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ। 27 साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है। कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। आज एक अच्छी चीज ये है, ये इतने सारे टीवी कैमरा वाले आए हुए हैं और ये सारे थोड़ा बहुत तो चला ही रहे होंगे जितना भी इनको मौका मिलेगा। तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का। आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के। तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा। अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा। अभी कई सारे साथियों ने कई सारे बातें रखी। एक कहा गया कि दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स है क्या? दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। एक साथी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई सारे इंसिडेंट्स बताए। 2.5% असेसमेंट के टाइम पे देना पड़ता है, रियल एस्टेट में बहुत सारा करप्शन है, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा। एमएसएमई के बहुत सारे साथी आए हुए हैं, उन्होंने बताया एमएसएमई मेरे हिसाब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसे जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बातें सारी पार्टियां करती हैं, भाषण सारी पार्टियां देती है, एमएसएमई का नाम सारे लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा निचोड़ा एमएसएमई के लोगों को जाता है। उनको सबसे ज्यादा दुखी करके रखा हुआ है सभी सरकारों ने। मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी यहां पे किसी ने बोला कि एमएसएमई को उसी तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए जाते हैं। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। जीएसटी, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, जीएसटी के ऊपर अभी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, तो थोड़ा टैक्स वैक्स ज्यादा आता है मेरे को इन लोगों से। एक साथी ने बताया कि सोलर के ऊपर पहले बोले कि सब्सिडी देंगे, फिर अब सब्सिडी दे नहीं रहे, काफी सारी कैपिटल लॉक्ड है, उसकी वजह से अब कह रहे हैं एग्जिट कर जाओ। तो अब कैसे एग्जिट करे? जिसका पैसा फंस गया वो एग्जिट कैसे करेगा? एमएसएमई सेक्टर को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। जीएसटी को बड़ा जटिल बना दिया इन लोगों ने। वहां पे एक साथी ने अच्छा सुझाव दिया, इसको मैं दिल्ली में जाके लागू करूंगा। उन्होंने कहा कि एक आम छोटा व्यापारी, जीएसटी का कंप्लायंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, अगर आप जीएसटी के सारे कानून को लागू करना चाहो तो इतनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस देनी पड़ती है, इतने टैक्स एक्सपर्ट्स की फीस देनी पड़ती है। आदमी कमाएगा कि उनकी फीस देगा? तो अगर सरकार कई सारे एक्सपर्ट्स को रख ले अपने पास और वो फ्री में एडवाइस देना चालू करे तो उससे काफी फायदा हो सकता है। एक अच्छा सुझाव आया। एक पता चला कि ट्यूबवेल के ऊपर अब 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस कर रहे हैं। एपीएमसी को लेके, जीएसपीसी को लेके कई सारे सुझाव आए। सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं।
कौटिल्य जो है, जिसने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी अपनी किताब में कि टैक्स इस तरह से लिया जाना चाहिए, एक राजा को अपनी जनता से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि उसे पता भी ना चले कि टैक्स ले लिया। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसे पता भी नहीं चलता शहद निकल गया। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसी तरह से टैक्स लिया जाना चाहिए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कई मेरे दोस्तों को जानता हूं, छोटे छोटे व्यापारियों को, जिनका जीएसटी की वजह से धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो जीएसटी नहीं कर पा रहे, तो धंधा ही बंद कर दिया उन लोगों ने। ऐसे टैक्स सिस्टम का क्या फायदा जो धंधा ही बंद कर दे, जो व्यापारी बंद कर दे। हमें पूरे देश के अंदर ऐसा टैक्स सिस्टम की जरूरत है जो कि आसानी के साथ लोग, सबसे पहले क्या जरूरत है, टैक्स बाद में आता है, पहले अर्थव्यवस्था तो चले, व्यापार तो चले, इंडस्ट्री तो चले, रोजगार तो मिले लोगों को, दुकानें तो चले, उद्योग तो चले। उद्योग ही नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, दुकानें ही नहीं चलेंगी, और कहेंगे टैक्स दो पहले, टैक्स दो पहले। टैक्स कहां से देगा आदमी? ये जो पूरा जीएसटी बनाया गया, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और बनाने के बाद ये जो यूनिफॉर्म पूरे देश के अंदर एक जैसी चीजों के ऊपर एक जैसा टैक्स, ये भी सही नहीं है। हमारे देश के अंदर गुजरात की अर्थव्यवस्था अलग है, देश की अलग है, इसकी अलग है, वहां पे अलग हो सकता है एक चीज के ऊपर, यहां टैक्स लगाना हो, वहां ना लगाना हो। मैं पर्सनली इस पूरे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि व्यापारी और उद्योगपति आराम से टैक्स दे सकें। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। एक माहौल यह बना दिया गया देश के अंदर कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहता, उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग उद्योगपति अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया, और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया, आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर, जितने हमारे जीएसटी फीएसटी के जितने इंस्पेक्टर थे, सबको बोल दिया कमरे के अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं जाएगा। व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो, व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो, ईमानदारी से। मुझे याद है, एक साल 17 या 18 की बात है, दिवाली का टाइम था। कुछ व्यापारी, मनीष सिसोदिया जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुछ व्यापारी मनीष सिसोदिया जी के पास आए, बोले जी वो आपके इंस्पेक्टर आजकल खुलेआम बाजार के अंदर घूम रहे हैं और लोगों से दिवाली इकट्ठी कर रहे हैं, दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो इंस्पेक्टर्स को बुला के पूछता कितना इकट्ठा कर लिया, मेरा कहां है। मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, उसने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया और उसके ऊपर व्हाट्सएप का अपना नंबर डाल दिया, और उसने कहा कि अब अगर कोई इंस्पेक्टर आपसे लेने आए, उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सारे इंस्पेक्टर्स ने दिवाली इकट्ठी करनी बंद कर दी। हमारी ईमानदार सरकार थी, इसीलिए हम लोग ये कर पाए। तो दोस्तों, जीएसटी जो है, जो जिस तरह से जीएसटी देश के अंदर बढ़ाया जा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दिया, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, आटे, गेहूं, चावल के ऊपर जीएसटी लगा दिया। पता नहीं और क्या बचा है जिसके ऊपर जीएसटी, हवा के ऊपर जीएसटी लगाना और बाकी है। दिल्ली के अंदर हमने
एक काम किया, भ्रष्टाचार खत्म किया सरकार के अंदर से। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचने लगा हमारे पास। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सबसे पहला हमारा एक फ्लाईओवर है वजीरपुर का, उसके बाद इस तरह के कई उदाहरण हुए जो हमने फ्लाईओवर बनाना था, 325 करोड़ का बनना था। अक्सर देखा जाता है कि सरकारों के अंदर जब काम होता है, 325 करोड़ का काम होना होता है, तो वो बढ़ते 1,500 2,000 करोड़ तक का चला जाता है। एक साल में होना होता है, 7 साल 8 साल में चल जाता है। हमने वो फ्लाईओवर 225 करोड़ की बजाय 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए बचा लिए, क्योंकि हम पैसे नहीं खाते। और इस तरह से हर काम के अंदर हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया। तो दिल्ली के अंदर आज एक तरफ सरकार हमारी सरप्लस में चल रही है, फायदे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इस साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो नफे में चल रही है, फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही हमारी सरकार। तो टैक्स नहीं बढ़ाया हमने 5-7 साल में, रेड बंद कर दी हमने, अपने व्यापारियों के ऊपर भरोसा किया और हम लोगों ने इतनी सारी चीजें फ्री कर दी वहां पे। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा इतनी अच्छी, इतने स्कूल खोल दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों का हर आदमी का इलाज पूरा मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी कराना है, कैंसर भी हो जाए आपको, आपका सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों के लिए। इतनी सारी चीजें कर दी, पैसा बहुत बचने लगा। एक तो हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और एक सरकारों में फिजूल खर्ची बहुत होती है। 10 रुपए का काम होता है तो 100 रुपए में, 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवाते हैं। पैसा बचाना शुरू किया हम लोगों ने। मुझे ये लगता है अगर नहीं पड़ेगी देश के अंदर, ये मंत्र है, और नहीं तो कोई अंत ही नहीं है। जनता पैसा दिए जा रही है, जनता से पैसे लेते रहो, जनता पैसा दिए जा रही है, जीएसटी बढ़ाते जाओ, जीएसटी बढ़ाते जाओ, इसका कोई अंत तो नहीं है। आपको ऊपर से आप ले रहे हो और नीचे से आपकी वो निकलता जा रहा है पैसा, भ्रष्टाचार के रूप में, फिजूल खर्ची के रूप में, सारा लीकेज ही लीकेज लीकेज ही लीकेज। जब तक बंद नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। तो आज मैं 5 बातें, 5 प्रॉमिस, 5 गारंटी गुजरात के व्यापारियों को देके जा रहा हूं। पहली चीज, डर का माहौल खत्म करेंगे। अभी पूरा हर व्यापारी डरा हुआ है, हर उद्योगपति डरा हुआ है, ऐसा डर का माहौल है। डर का माहौल खत्म करेंगे, निडरता के साथ, शांति के साथ आप अपना अपना व्यापार करें। आप फलें फूलें, आप फलेंगे, आप फूलेंगे तो गुजरात की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो सबसे पहले डर का माहौल खत्म करेंगे। दूसरी चीज, इज्जत देंगे। हर व्यापारी सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है, हर उद्योगपति सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। पैसे तो कमा लिए, लेकिन जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाता है और उसको दुत्कारा जाता है ना, उसको बड़ा बुरा लगता है। यार मैं सरकार को टैक्स देता हूं और मेरे साथ इस तरह के। जब कोई पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है और पॉलिटिशियन से दुत्कारता है तो बड़ा बुरा लगता है। इज्जत देंगे, व्यापारियों की इज्जत होगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और इस देश में कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल हम दे सकते हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, और ये इनको चुभ रहा है। आजकल खूब कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, खूब कीचड़ फेंक रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे, अब मनीष सिसोदिया को। कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। जनता पता है ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लगभग खत्म कर दिया। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया दिल्ली में, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब दिल्ली सरकार की 300 सेवाएं, 300 सेवाओं में तो सब कुछ ही आ गया। अगर आपको कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई बिजली का नया कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम दिल्ली सरकार से कराना है, पहले क्या होता था, आप छुट्टी लेते थे, दफ्तर जाते थे, लाइन में लगते थे, जब नंबर आता था तो बाबू 2 ऑब्जेक्शन लगा देता था, फिर 3 बार 4 बार चक्कर काटने के बाद आदमी दलाल को पकड़ता है और कहता है यार छोड़ मैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो,
आप एक फोन नंबर घुमाते हो, पिज्जा वाले को बोलते हो और वो आपके घर डिलीवर करता है। अब अगर आपको दिल्ली में दिल्ली सरकार से कोई सुविधा चाहिए तो हमने एक नंबर जारी किया 1076, वो दिल्ली से ही लगता है। दिल्ली अगली बार जाएं तो इस नंबर पे डायल करके देखना 1076। इस नंबर पे आप नंबर घुमाइए और आप बोलिए कि मेरे को दिल्ली सरकार से ये काम करवाना है। आपसे दूसरी तरफ से आवाज आएगी कि सर हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। कभी सुना था कि सरकार आपसे टाइम मांगती है आपके काम करने के लिए? मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 10 बजे आना। रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। वो आके आपको बताएगा ये कागज चाहिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी छोटी मशीन लेके आएगा, उस कागज की फोटोकॉपी लेके जाएगा, आपको रसीद दे जाएगा। 10 या 15 दिन के अंदर आपका बाय पोस्ट आपका काम, आपका राशन कार्ड या जो भी आपका बन के आपके घर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा अटैक है करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। पहली चीज डर खत्म करेंगे, दूसरी चीज इज्जत देंगे, तीसरी चीज भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। 2.5% कमीशन देनी नहीं पड़ेगी असेसमेंट के ऊपर, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। चौथी चीज, वैट के बहुत रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं और जीएसटी के भी 6 महीने के अंदर ये सारे रिफंड क्लियर करेंगे, जितने आपके पुराने रिफंड पड़े हुए हैं। और आपके साथ बैठ के जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस है, एक तरफ हम केंद्र सरकार के साथ बात करके उसको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गुजरात के अंदर जो जो बंद पड़ सकता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीएसटी के पूरे प्रशासन को प्रो पीपल बनाएंगे, ताकि ये सारा प्रशासन जटिल क्यों बनाया जाता है? इतना जटिल इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक हार के पैसे चढ़ावा चढ़ा के जाए। अगर नीयत साफ है तो हमें चढ़ावा चाहिए ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें रिश्वत चाहिए ही नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे उनको। तो इसको पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी बहुत सारी आप लोगों ने समस्याएं बताई, एपीएमसी की, जीएसपीसी की, 10,000 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बहुत सारी। और ये जितनी अभी बताई है इतनी नहीं है, अभी तो बहुत समस्याएं हैं। इसका तरीका ये है कि हम आपको पार्टनर बना के गुजरात के अंदर सरकार का पार्टनर बनाएंगे। एक ऐसी बॉडी बना देंगे सरकार के लेवल पे जिसमें हर सेक्टर से, एमएसएमई के हर सेक्टर से, बड़ी इंडस्ट्री, हर सेक्टर से कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान आप बताओगे, सरकार उसको लागू करेगी। जितनी समस्याओं का समाधान आप बताओ, सब सरकार उसको लागू। आपको एक पार्टनर के रूप में। तो 5 चीजें, डर खत्म करेंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सारे वैट के रिफंड 6 महीने के अंदर खत्म, और जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे और आपको पार्टनर के रूप में साथ लेके चलेंगे। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के व्यापारियों को कहते थे ये बीजेपी का वोट बैंक है। आज आप मुझे वोट मत देना, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। दिल्ली में आप फोन करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर वो कहें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक नहीं चल रही, मुझे वोट मत देना। लेकिन अगर वो कहें कि दिल्ली में हमारी सरकार अच्छी चल रही है, तो एक मौका तो बनता है हमारा भी यहाँ पे गुजरात में। एक मौका देके देखो, अगर पसंद नहीं आए, जो जो बातें हम कह रहे हैं 5 साल में अगर हम पूरी ना करें, तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतनी भारी संख्या में आए, माफी मांगता हूं कि हम लेट हो गए, कई सारे कारण हैं लेट होने के, लेकिन आपसे मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना इंतजार किया। थैंक यू सो मच। આ બદલતી રાજનીતિની તસવીર છે
કે આજ સુધી દરેક પોલિટિકલ પાર્ટીઓમાં આપણે જાતા ત્યારે હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મની જ્ઞાતિ જાતિની વાતો થતી. આજે આ આમ આદમી પાર્ટી છે કે જે એવું કહે છે કે રાજનીતિ કરવાની બદલવા આવ્યા છે. આજે એમના રાષ્ટ્રીય આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી જ્યારે વ્યાપારીઓની વાત આવી રીતે સાંભળે, 1 to 1 સાંભળે તો આ બદલતી રાજનીતિ છે અને આવનાર દિવસોમાં ગુજરાતને આમ આદમી પાર્ટી એક નવા મુકામ સુધી પહોંચાડશે. આપ સૌ અલગ અલગ જગ્યાએથી આ meeting માટે